Hello everyone, welcome to session. So in this session, we want to discuss function part 2. I hope you guys have watched function part 1 in which we have understand what is function. We have discussed basic types of functions also. And today will be further add on that class. So even function. Even function, this is also a type of function like will be discussed today. Even function, odd function, inverse function. These will be discussing today. So even function, what is even function? Even function का definition if this is a function y equal to fx. If f minus x equal to fx, if this condition is satisfied, that function will called a even function. For example, let's take a function with y equal to x square. This is a function. So if you put here let's take minus 2. Let's take minus 2. So minus 2, that is 4, and let's take 2, that is also 4. So f minus x equal to fx. So that's why this function is a even function. I hope basic understanding is clear. You need to put in a function, पहले तो minus x value put करो, फिर x put करो. If both the values are equal, result is equal, that function will called a even function. Let also understand what type of curve we see in the, इसका curve कैसा दिखता है even function का. अगर हम curve देखें तो like y equal to mod x है ना. This is also even function. If you put minus 2, you will get 2. If you put 2, you will get the 2. This is also even function. तो इसका ग्राफ कैसा होता है? इस ग्राफ mod x का ही ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. mod x का ग्राफ. This is the graph of mod x we have seen in the last sessions, है ना. So y equal to mod x. This is a even function. So one thing you can note down from here, that graph of even function is symmetric about y axis. ठीक है, you can note down this thing. Graph of even function is symmetric about y axis. देखो y axis के symmetric है ना, y axis के symmetric, y axis के symmetric है, same graph copy हो रहा है. Fine. Now let's see the even odd function. This was the even function. Now let's see the odd function. So odd functions are where f minus x equal to minus fx. वहां पर क्या था? यहां पर था fx equals to, ये माइनस साइन नहीं था ना यहाँ पर, तो दिस इज द कंडीशन. इफ दिस वैल्यू सेटिस्फाइड, योर फंक्शन विल बी कॉल्ड अ ऑड फंक्शन. फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक्स क्यूब ले ले. तो इफ यू पुट एक्स, अगर एक्स पुट करोगे तो वैल्यू ये आएगी. माइनस 2 ले लेते हैं, या कोई वैल्यू ले लो, नंबर ले लो. लेट्स टेक सम नंबर. एक्स लेकर भी कर सकते हैं ना, वही चीज आएगी. इफ यू टेक 2, तो दिस विल बी 2 cube, that will be 8. And if you put minus 2, so this will be minus 8. So what is it? So here I put fx and f minus x है ना, ये मैंने put किया था f minus x. So this is f minus x equals to fx पे minus लगाना. This is fine, minus 8. So that's why this is a odd function. ठीक है, ये दोनों चीजें clear. I hope this thing is clear. What is the basic thing about even function? What is about odd function? ऑड फंक्शन का कर्व कैसा होता है? अगर हम एक्स क्यूब का रफ कर्व ड्रॉ करें, सो दिस विल लुक लाइक दिस. एक्स क्यूब का कर्व कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है, सो दिस इज अ कर्व फॉर ऑड फंक्शन. सो व्हाट इज हियर? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. ये ओरिजिन के सिमेट्रिक है. यहां से देखो, इसको ऐसे इस पे ओवरलैप कर जाएगा ना. सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सेस है, सिमेट्रिक अबाउट नॉट वाई एक्सेस, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. सो फंक्शंस, इवन फंक्शन जो होते हैं वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सेस थे. जो ऑड फंक्शन है, दोज आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. ठीक है, नोट डाउन दीज पॉइंट्स. नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एन इवन फंक्शन? तो इवन फंक्शन का डेफिनेशन क्या था? इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, दैट फंक्शन विल बी अ इवन फंक्शन. तो यहाँ पर जस्ट एक वैल्यू पुट करते, पहला ऑप्शन अगर ट्राई करें, तो आई थिंक इजिली यू कैन सी हियर, लाइक तुम देख सकते हो, मतलब एक एक ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, यहाँ पर देखो क्या है. दिस इज नॉट आई. यहाँ पर जब माइनस एक्स पुट करोगे प्लस हो जाएगा एक बार, तो ये तो होगा नहीं. तुम सब में एक एक वैल्यू पुट करके दोनों के ये निकाल के वेरीफाई कर सकते हो. सबका ये निकालना, जिसका ये दोनों इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी योर आंसर. बट ऐसे हम जस्ट बाय लुकिंग एट दिस, आई एम टेलिंग यू कैसा होगा कि देखो ये सिमेट्रिक नहीं होगा ना. यहाँ पर जब माइनस एक्स रखोगे प्लस कर देगा,
इसमें क्या है, ये सब तो ठीक है, ये गड़बड़ कर देगा, माइनस एक्स रखोगे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं होंगे, ये वाला हो जाएगा। इसमें देखो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये तो एक्स पावर जीरो, ये भी पॉजिटिव रहेगा। ट्राई करते हैं थर्ड ऑप्शन में, माइनस एक्स पुट करते हैं, माइनस एक्स टू द पावर सिक्स माइनस 39, एक्स टू द पावर जीरो तो वन ही होता है ना, एफ एक्स एक्स पुट करते हैं तो जो वैल्यू दिया वही रहेगा एक्स पुट करने पे, तो ऐसा चेंज आएगा नहीं। तो बोथ आर सेम, both are same, so that's why third option is the even function. Okay, now let's see the next function, that is greatest integer function. Greatest integer function काफी यूनिक सा फंक्शन है ये, तो आई होप many of you may know already, but let me explain it what it is greatest integer function. तो इसको डिनोट ऐसे करते हैं, अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, y इक्वल टू, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो अब इसमें होता है क्या है कि सपोज नंबर इज रिटन लाइक 2.3, ऐसे नंबर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी डेट आउटपुट विल बी 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा डेट विल बी आउटपुट। जैसे एग्जाम्पल मॉड से समझो, मॉड में -2 होता था तो इसका आउटपुट क्या होता था, 2 होता था। सिमिलरली जब भी कोई भी नंबर इसके अंदर लिखा हुआ है लाइक 1.37, तो इसका जो आउटपुट होगा डेट विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉसिबल। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब सपोज इंटीजर लिखा हो तब क्या होगा, तब तो इंटीजर ही होगा, है ना, अगर ऐसे लिखा हुआ तो आउटपुट इंटीजर ही होगा। अच्छा, थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर होता है, कुछ नंबर्स लेता हूँ मैं जिनमें कंफ्यूजन। अच्छा, सपोज अगर 0.35 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, सिंपल 0 होगा। अच्छा, इसका मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिफोर, लाइक पॉज इट हियर एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, और लेट्स से -0.35, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या, व्हाट विल द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दीज टू। तो समटाइम्स कंफ्यूजन होता है, इसके लिए मैं तुम्हें क्या बताता हूँ, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। निगेटिव टाइप वाले होते हैं तो सिंपल नंबर लाइन पे इसका हम अभी कर्व भी देखेंगे, विल सी द कर्व ऑफ दिस ऑल्सो। बट अगर तुम्हें कभी कंफ्यूजन हो जाए, वैसे तो जैसे रट सकते हो कि लाइक -1 +1 जब माइनस में होता है ऐसा करते हैं, आई विल नॉट गो इन टू डैट थिंग, वो अपना तुम नॉमिनेशन अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई भी चीज़ का नॉमिनेट कर, मतलब उसे अपने हिसाब से तुम वो कर सकते हो। बट लेट मी टेल यू बेसिक कैसे इसको लिखते हैं। तो नंबर लाइन पर देखो, अगर 0 1 2 -1 -2 -3 माइनस, ठीक है, ऐसे नंबर लाइन पे अगर तुम्हें 1.35 है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, तो इसके जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है डेट विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डेट इज 1। बेसिक डेफिनेशन ये, बेसिक फंडा ये। अब अगर -0.35 है तो -0.35 विल बी हियर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाला, डेट इज -1, ठीक है। अब -1.2 कहाँ पर होगा, -1.2 विल बी हियर समवेयर, यहाँ पर होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, -2, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, है ना। तो जैसे याद करने को कैसे करते हैं कि जो यहाँ पर होता है उससे माइनस कर देते हैं अगर निगेटिव टर्म आता है, बट आई वुड से बेटर अंडरस्टैंड इन दिस वे, है ना, ऐसे समझो। ओके, नाउ लेट्स सी द कर्व। आई होप ये समझ में आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है और कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, कैसे इससे वैल्यू फिगर आउट करते हैं। लेट्स सी द कर्व ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कर्व देखते हैं कैसा दिखता है, बेसिक y इक्वल टू एक्स पर, है ना, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये कर्व है। 1 2 3 4 1, छोटा सी कर्व ड्रॉ करेंगे ना, जस्ट टू गेट यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैसा कर्व दिखेगा। एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो समटाइम्स, लाइक हो सकता है तुम्हें एग्जाम में ऐसा कर्व बना के पूछ लें किसका कर्व है, ऐसी चीज़ें करके। एंड एट मैनी प्लेसेस ऑल्सो इट विल बी हेल्पफुल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑल्सो, विल लेटर ऑन सी द क्वेश्चंस। वंस वी कवर्ड ऑल द अलजेब्रा विल सी द मल्टीपल क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस भी हम करेंगे, देर विल सी द सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑल्सो, है ना, तो अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। तो देखो लेफ्ट वाला इंक्लूड करना है, ये जो लाइक ये जो फील्ड सर्कल है ना, डार्क सर्कल, इसका मतलब इंक्लूड है, और इसका मतलब है नॉट इंक्लूड, जो ब्लैंक है। दिस इज द वे, ऐसा कुछ ग्राफ दिखेगा, ब्रेक लाइक ग्राफ होगा इसका।
ये जो इस सर्किल का मतलब है दिस इज नॉट इंक्लूडेड, है ना, और डार्क फील्ड सर्किल का मतलब है दिस इज इंक्लूडेड। तो यहाँ पर -2 इंक्लूड नहीं है, -3 इंक्लूड है, और यहाँ पर -3 इंक्लूड नहीं है, -4 इंक्लूड, राइट। सो दिस इज द कर्व ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा देखे। नाउ लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। दिस इज इंक्लूडेड, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस। तो ये यहाँ पर ये जो ये डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर GIF फंक्शन डिनोट कर रहा है, एग्जाम में लिखा होगा व्हाट इट मींस, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, इसके पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन निकालना है। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे, नाउ लेट्स थिंक इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लाइक 8 10 पॉजिटिव इंटीजर फंक्शन है ना, तो लाइक x इक्वल टू 1 अगर मैं पुट करूँ यहाँ पर, तो 1, तो 0.0 समथिंग आएगा, है ना, पॉइंट जीरो समथिंग आएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है, 0 आ जाएगी। तो x इक्वल टू 1 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, x इक्वल टू 2 दोनों इक्वल आ जाएंगे, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5, आई होप सब बात समझ में आ रहा है। x इक्वल टू कहाँ तक ही आएगा, x इक्वल टू 8 तक इक्वल आएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 से 8, 1 से 8 सॉल्यूशन आएगा ना, 1 पे देखो आ रहा है, 8 पे देखो क्या होगा, व्हेन यू पुट 8 हेयर, व्हेन यू पुट 8 हेयर दिस बिकम 1 एंड दिस इज अगेन 0.1 समथिंग, तो इक्वल नहीं रहेंगे दोनों ना, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और इसका वैल्यू हो जाएगा 0। इज दिस क्लियर? So we have the solutions from x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 8 तक सॉल्यूशंस आ गए। इसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, लेकिन ये कब तक जाएगा, ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। 9 पुट करें तब कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। अगेन ये 1 से ज़्यादा आ रहा है, ये 1 से कम आ रहा है। 10 पे फर्क पड़ेगा, 10 पे ये 1 हो जाएगा। 10 पे देखते हैं क्या हो रहा है। 10 पे 10 अगर पुट करते हैं, हाँ 10 पे दोनों सेम है ना, 10 पे ये 1 आ रहा है, ये 1 पॉइंट समथिंग, तो मतलब 1 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 10 पे सेम है, तो 10 एक सॉल्यूशन है। 1 से 8 तक सॉल्यूशन है, फिर 10 एक सॉल्यूशन है। दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू डू मैनुअली, कोई और मतलब आई डोंट थिंक देयर इज अदर वे। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कैट में, जिनमें लाइक यू हैव टू थिंक, दिस इज नॉट फॉर्मूला और समथिंग, यू नो द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इवन दे विल गिव यू द डेफिनेशन देयर आल्सो। पेपर में देखोगे अगर आएगा तो दे में मेंशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी क्या होता है, वो 1-2 लाइन वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। देन यू हैव टू जस्ट थिंक ऑन योर ओन, कोई फॉर्मूला कुछ दिमाग, मतलब यू हैव टू यूज योर ब्रेन, कोई फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा। होंगे फॉर्मूला के क्वेश्चन, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होंगे एग्जाम में जहाँ पर तुम्हें लगेगा डेट यू डोंट रिक्वायर एनी फॉर्मूला, यू हैव टू जस्ट यूज योर ब्रेन। ओके 10 11 पे आएगा, हाँ 11 तक भी चलता रहेगा। तो ये कब तक चलता रहेगा? जब तक किसी का मल्टीपल नहीं आ जाएगा। इसका मल्टीपल है 16, तो 16 पे देखो क्या हो जाएगा, 16 पे ये 2 हो जाएगा और ये 1 ही रह जाएगा। तो ये कब तक चलेगा? इससे पहले तक चलेगा। अच्छा 8 यहाँ पर इंक्लूडेड था, इट वॉज नॉट इंक्लूडेड, इट वॉज टिल 7, इट वॉज टिल 7 है ना। 8 पे ये 1 हो जाएगा बट ये 1 नहीं होगा, तो यहाँ पर मल्टीपल से एक कम तक 15 तक आएगा, ठीक है। तो 16 अगेन नहीं होगा, 16 पे 2 है, 1 है, 17 भी नहीं होगा, 18 भी। कब तक नहीं होगा? जब तक इसका नेक्स्ट, अब देखो पैटर्न हमें पता चल रहा है, कब तक नहीं होगा? जब तक इसका मल्टीपल नहीं आ जाएगा। इसका मल्टीपल है 20, 20 पे दोनों 2 हो जाएंगे। आई थिंक दिस इज सिंपल, नाउ वी हैव अंडरस्टैंड द पैटर्न। आई थिंक अब पैटर्न समझ में आ गया, अब हमें जस्ट सॉल्व करना है। तो ये 20 अब ये कब तक जाएगा? जब तक इसका मल्टीपल नहीं आ जाएगा, डेट इज 24, 16 24, उससे कम तक जाएगा, ये 23 तक ही काम करेगा। 23 की करेगा ना, 24 पे क्या होगा? 24 पे ये 2 रह जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 24 के बाद इसके मल्टीपल आते हैं, इसका मल्टीपल होगा डेट इज 30, दिस मल्टीपल विल बी 30। 30 पे देखो क्या होगा, 30 पे ये 3 रहेगा, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो ये 3 आउटपुट, ये भी 3 आउटपुट, 30 पे काम करेगा। कब तक जाएगा? जब तक इसका नेक्स्ट मल्टीपल नहीं आ जाएगा, डेट इज 32। 32 पे देखो क्या होगा, ये 3 रह जाएगा बट ये 4 हो जाएगा, उससे एक कम तक 31 तक। क्लियर? 31 तक आ गया। अब क्या करना है? अब इसका फिर मल्टीपल देखना है,
यहाँ पर किसका मल्टीपल देखे, इसका देख रहे 40 पे आते हैं, 30 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल देखो, पैटर्न समझ में आया, 1 10 20 30 मल्टीपल्स आ रहे हैं ना इसके, और यहाँ पर किसके मल्टीपल्स आ रहे हैं, इसके आ रहे हैं, 40 पुट करते हैं, 40, ये 5 हो जाएगा और ये 10 है, ये 4 रह जाएगा। आफ्टर दिस दे विल नॉट बी सेम अगेन, इसके बाद इनका रिजल्ट कभी भी सेम नहीं आने। इज इट क्लियर? आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद इनका रिजल्ट कभी मैच नहीं करेगा, क्योंकि अब ये जो डिफरेंस थोड़ा सा था वो अब बढ़कर 1 का हो गया है ना। तो दिस इज द सॉल्यूशन। काउंट कर लो कितने, 7 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, टोटल कितने हो गए, 19 सॉल्यूशन। चेक कर लेना अगर मैं कुछ स्किप कर गया हूँ, मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो, है ना। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। कैलकुलेशन just check at your end also. I think 19 is the right answer. Just let me know if there is any error or any counting I have done it wrong. You can let me know in the comment section, but that is the right answer, that is 19. Okay, so if you have any doubt, anything, you can let me know. You can call out for explanation in the comment section. Now let's see this question. So if x is the greatest integer function less than or equal to, we need to find the sum of the following series. तो ये सीरीज तुम्हारी है लाइक रूट्स लिखे हुए हैं नंबर के, है ना, लाइक और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाला एंड दिस इज अप टू 361। तो अगर हम देखें तो रूट 1 आ जाएगा, रूट 2 होता है 1.41, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा, 3 का भी 1 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका कितना आएगा, 19 आएगा, 19। अब देखो एक बात यहाँ पर समझ में आ रही होगी, 1 देखो कितनी बार आ रहा है, 1 आएगा 3 टाइम्स। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 होगी और 1.41 इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे 1 होगा, और 1.732 इसका भी 1 होगा, और इसका कितना होगा, 2 होगा। ऐसे ये कहाँ तक आएगा, 19 तक आएगा। 361 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 19 होता है, बट 19 कितनी बार आएगा, 19 एक ही बार आएगा, है ना, क्योंकि इसके पहले तो 18 रहा होगा। अब देखते हैं 2 कितनी बार आएगा, 2 कहाँ से कहाँ तक आएगा, मतलब 4 से लेकर जब तक ये 3 नहीं बन जाएगा, 3 मतलब जब तक 9 नहीं आ जाएगा। देखो 4 5 6 7 8 9, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, इसकी कितनी आएगी, 2 पॉइंट समथिंग, तो मतलब स्क्वायर रूट, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, 9 का कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर कितने तुम्हारे 2s आएंगे, वो कैसे डिसाइड होगा, 2 के स्क्वायर से फिर उसके नेक्स्ट स्क्वायर, कितने 2s आएंगे, तो 4 से 9 के बीच में, 4 से 9 के बीच में कितने नंबर्स हैं, इंक्लूडिंग 5 एक्सक्लूडेड 4, तो दैट इज द 5 नंबर, है ना। 4 आएगा, 5 आएगा, 6 7 8, रूट 4 रूट 5 रूट 6 रूट 7 रूट 8 तक तुम्हारे इतने आएंगे। अब 3 कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, रूट 9 से, रूट 9 से 3 कहाँ तक आएगा, 9 से लेकर 3 के स्क्वायर से लेकर, 3 हमें निकालना है, तो 3 के स्क्वायर से लेकर उसके नेक्स्ट स्क्वायर तक, दैट इज 16। तो ये पैटर्न समझ में आ गया, कैसे निकालेंगे, पैटर्न समझ में आ गया। 4 कितने आएंगे, 4 के स्क्वायर दैट इज 16 से लेकर नेक्स्ट स्क्वायर तक कितना, 25, तो इसका कितना हो गया, इंक्लूडिंग 16 नॉट इंक्लूडेड 25, तो दैट इज 9। ऐसे करके पैटर्न कहाँ तक जाएगा, 18 तक जाएगा। 19 तक क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज 19 इज स्टिल 361 ओनली, है ना, इसके बाद के नंबर्स नहीं है। तो दिस विल बी अप टू योर 18, and how many times 18 will come, that is 18 का स्क्वायर that is 324 till the 19 का स्क्वायर that is already given, that is 361. so how many terms are there in between, so that is 7 37, this will come 37. so this is the series. Now we have to find इसका summation find करना, you have to find the summation of this new pattern, this series that I have written. so this also becomes a question of sequence and series. so that will I hope जिन्हें थोड़ा बहुत आइडिया है they will be able to understand, but अगर तुम्हें नहीं पता, still this is a very basic thing, it's not any complicated thing, and I have little bit explained about जो यहाँ पर अभी आगे formulas यूज होने जा रहा है, that I've explained in the numbers also, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने। तो इस सीरीज का सम कैसे फाइंड करेंगे, अगर तुम्हें बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा है अभी इसको समझने का कोशिश करो, एंड देन वंस वी कवर्ड सीक्वेंस एंड सीरीज, आगे इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना। दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली राइट नाउ, गिव योर बेस्ट एफर्ट, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो सीक्वेंस सीरीज के बाद दोबारा फिर से इसको ट्राई करना, यू विल बी डेफिनेटली एबल टू अंडरस्टूड। तो इसका सम कैसे निकालेंगे? पहले इसका टी एन निकालते हैं, nth टर्म निकालते हैं सीरीज। सीरीज यहाँ तक है, बाकी 19 ऐड कर देंगे जो भी आएगा। nth टर्म इसका देखो निकलेगा, ये n है 1 2 3 4 5 n है। ये क्या है? ये देखो तुम्हारे ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं, 7 9 37 ऑड नंबर है। ऑड नंबर 3 से स्टार्ट हो गए तो डेट इज 2n+1, 2n+1, ये तुम्हारी सीरीज हो गई। अगर nth टर्म पता है तो इसका समीशन निकालना होगा। nth टर्म क्या होता है? nth टर्म इज द टर्म, इज अ फंक्शन तुम बोल सकते हो, जिसमें अगर वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें सीरीज का टर्म, जैसे तुम्हें थर्ड टर्म निकालना है तो पुट इट हेयर 3, तो 3 पुट करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 × 7 आ जाएगा, जो भी पुट करोगे वाला टर्म आ जाएगा। तो ऐसे में 18 तक सम निकालना है। तो अगर सीरीज का सम निकालना होता है, लाइक हमें इस सीरीज का सम निकालना है, तो विल जस्ट पुट इट हेयर समीशन सिंबल becomes ऐसे समीशन सिंबल। सो दिस बिकम लाइक 2n² + n, और इसको फिर ब्रेक कर देंगे। Sn इक्वल्स टू कितना था वहाँ पर? समीशन ओवर प्लस है, सॉरी प्लस है यहाँ। तो दिस इज लाइक 2n² + समीशन ओवर n, दिस बिकम योर। अब नंबर्स में मैंने फॉर्मूला बताया, समीशन ऑफ लाइक सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 से ही ना, पॉजिटिव नंबर 1 से स्टार्ट है टिल nth स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? n+1 2n+1/6 होता है, n+1 2n+1/6 होता है। जिन्होंने नंबर्स क्लास देखी, आई होप यू गाइस रिमेंबर द फॉर्मूला, n+1 2n+1/6, ये फॉर्मूला होता है n स्क्वायर का। और n टर्म्स क्या क्या होता है ये तो सबको ही पता होगा, n+1/2। कितने टर्म्स हैं इस सीरीज में? 18 टर्म्स है। 19 तो सिंगल है, 19 अलग से ऐड करेंगे। 18 वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 2 × 18 × 19 और इंटू कितना है ये 37। कैलकुलेशंस चेक करते रहना, आई होप मैं अपना बेस्ट एफर्ट दे रहा हूँ, सही हो, बट अगर कोई भी मिस्टेक हो लेट मी नो। 18 19 तो ये 2 ये 9 आ जाएगा, ठीक है। ये पता है ना 6 मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना 2 कैंसिल हो जाएगा 9। ओके, अब कैलकुलेशंस करते हैं। तो दिस इज 37 × 3 क्या होता है? 111 होता है, 222 हो गया, 222 × 19, 19 टू द 38। माई कैलकुलेशन और नॉट डैट गुड, तो मिस्टेक हो सकता है, अगर कोई हो जाए तो मतलब कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। 41 38 3 41 42, दिस इज, ये सब कुछ कर लिया हमने मल्टीप्लाई, ठीक है। 19 9 का 171 होता है आई थिंक, 983। इसमें कितना ऐड करना है? 19 लास्ट वाला, 4408 आ रहा है मेरा, 4408 इज इन द ऑप्शन, सो दिस इज आवर राइट आंसर। 19 ये बाद वाला ऐड किया, ठीक है, 19 बाद वाला ऐड किया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तुम्हें। थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है बट इतना डिफिकल्ट नहीं, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इट इज मोर अबाउट द बेसिक्स देन एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आई होप मैं नेचुरल नंबर्स में अगेन पहले ही बता रखे हैं सीरीज से पहले ही तुम्हें, और बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ये nth टर्म और SN कैसे निकालते हैं सब तुम्हें सीक्वेंस एंड सीरीज में और क्लियरिटी आ जाएगी। बट अभी के लिए समझते चलो, बिकॉज अलजेब्रा काफ़ी मिक्स टाइप का है एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में टॉपिक्स लीनियर चलते हैं ना, अलजेब्रा में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे जो आगे के कभी कभी यूज हो जाते हैं। ओके, इनवर्स फंक्शन, तो वी हैव लर्न लाइक ऑड इवन एंड greatest integer. Now let's see the what is inverse function. So inverse function is also a very unique type of function. So like अगर suppose y equal to fx लिखा हो, y equal to fx लिखा हुआ है, and if you are able to like इसका इनवर्स अगर निकालो, इसका इनवर्स will be x equal to f minus y। अगर मैं इसको और थोड़ा सिंपल टर्म में समझाऊं तो सपोज एक इक्वेशन लिखी हो y equal to 2x plus 3, ठीक है। अब इस इक्वेशन को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना, दैट इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। ओके, दैट इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। किसी फंक्शन का इनवर्स अगर निकालते हैं तो दिस इज द इनवर्स, दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस गिवन फंक्शन। और अगर ये इक्वल हो जाए तो दैट फंक्शन विल बी कॉल्ड भी इनवर्स फंक्शन। अगर f
इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए तो डैट इज बेसिकली अ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, सिंपल सी बात। अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से इनवर्स फंक्शन निकाल के दिखाता हूँ। सपोज y इक्वल टू 2x+3। अब इसका इनवर्स निकालना है तो तुम क्या करोगे, सिंपल y को इनवर्स बेसिकली क्या है यहाँ पे, y को हम अब x के टर्म में लिख देंगे, दैट इज अ इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ पर अभी क्या लिखा हुआ है, x लिखा, y लिखा हुआ है x के टर्म में, अब हम x को लिख देंगे y के टर्म में। कैसे? नाउ y इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ x, है ना, x इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ y। यहाँ पर क्या लिखा है, y इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ x। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। अगर सपोज ये इक्वल हो जाए तो दैट विल बी कॉल्ड अ इनवर्स फंक्शन। बट अभी ये क्या है, ये इसका इनवर्स वाला फंक्शन है। ठीक है, अगर ये दोनों सपोज इक्वल आ जाते, सिमिलर टाइप ऑफ आ जाते, कैसे? कुछ फंक्शंस तो मैं दिखाता हूँ। लेट्स से y इक्वल टू, सब एक मैं तुम्हें एक जनरलाइज्ड फॉर्म बताता हूँ तुम्हें। अगर तुम्हारा फंक्शन ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू एफ एक्स, ये फंक्शन है। इफ a equals to minus d, then given function will be a inverse function। ठीक है, क्या मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, सपोज एक फंक्शन लिखा तुमने x इक्वल टू लेट्स से 2x+3, इसी फॉर्म में ट्राई करते हैं, एंड दिस इज 3x और दिस इज -2, y इक्वल, ये फंक्शन है तुम्हारा, y इक्वल टू 2x+3 एंड 3x-2, दिस इज योर फंक्शन। अब अगर तुम इसको चेंज करते हैं, लेट्स ट्राई टू चेंज इट, लेट्स ट्राई टू, इसको नोट डाउन कर लेना, इसको नोट डाउन कर लेना। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट दिस थिंग हियर, दिस फॉर्मूला। इसको अगर मैं रिप्लेस करूं तो क्या करना है, इसको अभी तो इधर मल्टीप्लाई करते हैं 3x, इसका मैं इनवर्स फंक्शन निकाल रहा हूँ। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन, इक्वेशन, वट एवर इट इज। दिस इज 2x+3। सो 3x, y एक्साइड कर, x एक्साइड कर लेते हैं ताकि हम y x को y के फॉर्म में लिख पाए। दैट इज 3xy -2y एंड 2x+3। इसको मैं हटा रहा हूँ, आई होप यू गाइस हैव नोटेड डाउन। So this is x 3xy -2x 3+2y। ठीक है, सही कर रहा हूँ ना, x 3+2y अपॉन 3y-2, 3y, ये आ गया। अगर इसको देखें तो व्हाट इज दिस, दिस इज x इक्वल टू 2y+3 एंड 3y-2। ये इनवर्स फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन मैंने लिखा है y इक्वल टू दिस इज अ इनवर्स फंक्शन। कैसे? देखो ये दोनों सेम आ गए, यहाँ से देखो ये चीज दोनों सेम आ गई, एफ इनवर्स एक्स, इनवर्स फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आ गया। कैसे? यहाँ पर तुम जस्ट y और x को रिप्लेस कर दो, y और x को रिप्लेस कर दो, सेम है दोनों, दोनों सेम है। 2x+3 2x+3 3x-2, तो दिस इज अ इनवर्स फंक्शन, ये तुम्हारा एक इनवर्स फंक्शन। और ये कब होता है, जब ये कंडीशन होती है a इक्वल टू -d, जब ऐसा फंक्शन लिखा हुआ हो और उसमें a इक्वल, देखो क्या है, a इक्वल टू -d है, देन दिस सिचुएशन विल अकर। राइट, तो बेसिक ये याद रखोगे अगर तो बेटर रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, एक क्वेश्चन अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें डायरेक्ट इसी पर, अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी पता है तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तुम्हें टाइम कम लगेगा। अदरवाइज तुम्हें ऐसे एक्सपेंड करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अदरवाइज तुम्हें एक्सपैंड करके इतना टाइम लगेगा, अदरवाइज तुम देख के इजीली बता दोगे कि डेट दिस इज द आंसर। ओके, सो इनवर्स फंक्शन बेसिकली तुम्हें क्या चीज समझ में आनी चाहिए, कुछ भी गिवन लाइक सिंपल सी एक इक्वेशन लिखी हो, 3x+4 जो अभी कुछ भी मैंने लिखा था, अब इसको x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, दैट इज द इनवर्स फंक्शन। सिंपल, y x के फॉर्म में दिया है, x को y के फॉर्म में लिख दो, इनवर्स फंक्शन। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ f इनवर्स 5। तो हमें क्या करना है, पहले इस फंक्शन का हमें इनवर्स निकालना है, देन वैल्यू फाइंड करनी है ना, उसमें पुट कर देना है। तो इसका इनवर्स कैसे निकालोगे, इसका इनवर्स कैसे निकालोगे, इसका इनवर्स सिंपल है, इसको इधर पुट कर दो, y+3 या 1/√3, दिस इज x इक्वल टू
y+3 और कितना है 1/3। दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। मैंने क्या किया, x को y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 पुट कर दो, 5+3 दैट इज 8, 1/3, x का वैल्यू कितना 2 इज योर आंसर। आई होप समझ में आया। सिंपल मैंने क्या किया कि पहले तो इसका इन्वर्स फंक्शन निकाला, इसका इन्वर्स ये आ गया, ये फंक्शन आ गया, और यहाँ पर जो ये वैल्यू दी है ये पुट कर दी, एंड यू विल गेट द आंसर। f इनवर्स 5 का आंसर आ गया तुम्हें, दैट इज 2। सिंपल इजी वन। अब ये निकालना है f इनवर्स x, है ना। इसमें तुम्हें प्रॉपर स्टेप्स करने पड़ेंगे। अब देखो अगर हमें वो याद है, ये सेम नहीं है ना, तो इसका इन्वर्स सेम नहीं होगा, कुछ अलग आएगा। ऑप्शन से चेक करके कुछ कर सकते हैं। 5x प्लस ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, तो दैट विल नॉट बी दैट फंक्शन। इफ x, आई डोंट थिंक वी कैन डू ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। लेट्स प्रॉपरली सॉल्व इट। y इक्वल टू 5x प्लस 3, 4x माइनस 9, y 4x। हमें क्या करना है, x को y के फॉर्म में लिखना है। फाइव एक्स प्लस 3, नाउ जस्ट 4xy और 9y प्लस 3। तो दिस इज x 9y प्लस 3, 4y प्लस 5, 4y प्लस 5। तो नाउ f इनवर्स x रख दो, 9x प्लस 3 ऑन 4x प्लस 5। दिस इज योर आंसर। 9x प्लस 3, कहाँ पर मिस्टेक हुआ, समवेयर वी डिड अ मिस्टेक। 5x ये प्लस आ जाएगा, ठीक तो है। 4x 5x प्लस 3, 5x 9y, अच्छा ये -5 है ना, -5। तो 9x प्लस 3 -5, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर, इनवर्स फंक्शन कैसे निकाल। ओके, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक फॉर टुडे, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दिस वन। A function can sometime reflect on itself, that is y equal to fx and then x equal to fy. So what is this? This is inverse function, है ना। y को x के फॉर्म में लिख दो, x को y के फॉर्म में लिख दो, एंड दैट रिमेन सेम, दैट इज योर इनवर्स फंक्शन। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे इनवर्स फंक्शन, या फिर ये पूरा एक्सप्लेन करके लिख दिया। बोथ आर द सेम थिंग, बोथ ऑफ देम रिटेन द सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फॉर्म, दैट इज टॉकिंग अबाउट द इनवर्स फंक्शन। विच आर द फॉलोइंग हैज दिस प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है उसको। ओके, तो हमें सारे चेक करने पड़ेंगे, है ना। अच्छा, हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना अभी, ax प्लस बी, है ना, और क्या था सी एक्स प्लस डी। अगर a इक्वल टू -d होगा देन दैट विल बी इनवर्स फंक्शन। पहले तो मैं ये बात समझ में आनी चाहिए, दिस इज आस्किंग लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फंक्शन एज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन ये। तो एक तो तरीका, अब देखो अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी पता है तो यू कैन सी हियर B is the right answer here. But अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता है then also like it will take a little bit time but you will be able to solve. But थोड़ा माइंड में you can put this property। तो आंसर मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया उस प्रॉपर्टी के बेसिस पर, बट नाउ यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन। तीनों चेक करो, है ना, y इक्वल टू ऐसे लिख के फिर x के y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके फिगर आउट विच इज द राइट आंसर। So I hope these things are clear. We have learned today even function, odd function, greatest integer function and inverse function. These things are clear in detail. If you have any doubts, you can let me know in the comment section, and make sure you do the questions from any book you can do, any standard book you can follow. Do the questions, and if you get any doubt from those books also, you can let me know in the comment section. Make sure you guys like this video and also share with your friends who are preparing for CAT examination, CAT and other examinations. So that's it. Let's see you in the next session.